स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाटा ट्रांसफ़र्स ऑन द इंटरनेट। हाउ द डाटा ट्रांसफ़र ऑन द इंटरनेट, डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट पर। हैव टॉक्ड डाटा ट्रांसफ़र एंड द इंटरनेट। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ सिटिंग इन वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड यू गेट information in another distant area in a few seconds? In a very simple language, let's see what happened to piece of data, say web page, when it's transferred over the internet. The data is broken up into bits, some sized pieces और कॉल्ड पैकेट्स। जो आपका डेटा होता है उसको हम जो ब्रेक हो जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ पीसेस, स्मॉल पीसेस के फॉर्म में होता है जो कि बिट्स के साइज़ में होते हैं। ए हेडर इज़ एडेड टू ईच पैकेट एक्सप्लेनिंग वेयर द डेटा हैज़ कम फ्रॉम। एक उसके साथ पैकेट के साथ एक हेडर होता है और एक एक्नॉलेजमेंट होता है जिसमें ये होता है कि डेटा जो है वो किसको ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका एड्रेस होता है, जहाँ से आया है उसका भी आपका एक्नॉलेजमेंट होगा, where it should end up and where it fits with the rest of packets. Okay, each packet is sent from the computer to computer until it finds its destination. Each computer on the way decide where to next send the packet. All packets may not take the same route. जो पैकेट होता है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सेंड होता है टू फाइंड इट्स डेस्टिनेशन फाइंड करने के लिए ईच कंप्यूटर ऑन द वे डिसाइड्स वेयर नेक्स्ट टू सेंड द पैकेट्स। ऑल पैकेट्स मे नॉट टेक द सेम रूट। जो सब पैकेट्स होते हैं वो अलग अलग रूट से आते हैं। ये कंप्यूटर डिसाइड करता है कि किसको शॉर्टेस्ट पाथ देना है। ये आपका जॉब शेड्यूलिंग में आता है, ठीक है। एट द डेस्टिनेशन द पैकेट्स आर एग्जामिन। डेस्टिनेशन पे क्या होता है, पैकेट्स को चेक किया जाता है। इफ़ एनी पैकेट्स आर मिसिंग और डैमेज ए मैसेज इज सेंट आस्किंग फॉर देम टू बी रीसेंट, ठीक है। If any packet is missing or damaged, the message is sent asking them to be resent. This continue until all the packets have been received intact. The packets are now reassembled into their original form. All this done in seconds. This is the process of how to transfer data over the internet. I think that all of you know understand. डेटा जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है, वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ईच पैकेट हैज़ ए यूनिक एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, जिसको वो जाना होता है, जहाँ पे उसको पहुँचना होता है उसका एक एड्रेस होता है, ठीक है। और वो फिर वहाँ पे चेक होता है किस एड्रेस पे जा रहा है ना। ये सब प्रोसेस होता है आपका पैकेट्स में, और फिर वो रीअसेंबल हो जाता है, फिर वो आपका रिसीव हो जाता है। To access the internet, you need an active internet connection. You need to gather, understand your requirement carefully before subscribing an internet connection plan. In this exercise, you will have to choose the internet connection. Some of the common questions that help you in your decision: what is the purpose of getting this connection? Will you use the connection regularly? How much data will be downloaded and average per month? How much speed do you need? What technology is available in your particular area? What are the different plans available from the ISP? ISP stands for Internet Service Provider. जब आप नया कनेक्शन ले रहे हैं नेट के लिए तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। Is there any limitation or catch for the selected plan? Use the following table to compare different subscription plan to get an estimate and analyze if that would suit your requirement. ISP Internet Service Provider, plan name, download speed, download limit, free modem। 3G 4G आजकल तो 4G आ गया, 3G आपका पुराना था। DSL जो आपका डिजिटल सब्सक्राइब लाइन है। ISP प्लान नेम आप इसको कंपेयर कर सकते हैं केबल इंटरनेट कनेक्शन और वाईमैक्स को। दीज आर द टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो आपके टाइप्स हैं। 3G लेना चाहते हैं, DSL लेना चाहते हैं, केबल इंटरनेट, वाईमैक्स। To access Wi-Fi, you need to access point with an active internet connection. Usually, when you subscribe an internet connection, the ISP provides option to purchase or rent a Wi-Fi router that act as a both internet connectivity device और access point और Wi-Fi connectivity. जब आप कोई फर्स्ट टाइम आप कनेक्शन लेते हैं तो वो आपको एक मॉडेम देते हैं जिससे कि आप वाईफाई राउटर भी यूज़ कर सकते हैं एज ए डिवाइस और एक्सेस पॉइंट और वाईफाई कनेक्टिविटी। You can access the Wi-Fi network by connecting to an access point that is already set up or for use. On computers that run Windows XP, you can view the list of wireless network available with the following procedure.
राइट क्लिक ऑफ द वायरलेस आइकन इन योर सिस्टम। कैसे आपने चेक करना है कि वाईफाई कनेक्शन, ये आपको पता है मोबाइल में भी वाईफाई ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे जो आपके पास कनेक्शन अवेलेबल है। ठीक है, जो आपके कनेक्शन उस रेंज में आ रहे हैं वाईफाई की रेंज में, तो वो आपके सिस्टम में या आपके मोबाइल में आप वाईफाई ऑन करेंगे तो वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे, जस्ट लाइक दिस पिक्चर। ये कुछ आपके पास एक्सरसाइज है, आप इसको करिए अच्छे से, अपनी नोटबुक में चेक करिए। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।